हेलो एवरीवन। सो कल यूट्यूब पे एंड टेलीग्राम पे मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि भाई एसए से रिलेटेड आपके क्या डाउट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड अ लॉट ऑफ यू हैड शेयर्ड अ लॉट ऑफ कंसर्न्स, सम ऑफ विच वर मतलब कॉमनली ये पूछा गया था कि भाई हाउ टू स्टार्ट एंड एनालाइज द क्वेश्चन कि भाई देन इफ़ देर इज़ नॉट एनी रिलेटेबल टॉपिक इन द क्वेश्चन पेपर तो भाई किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पलेट से नहीं करते, हाउ टू स्टार्ट पोएम्स एंड स्टोरीज, you know then a phase wise manner of कि भाई essay का complete breakdown. So not just this, बहुत से लोगों के advanced questions भी थे कि भाई how to use connector words या भाई मतलब एकदम how do you break down a topic, how do you explore multiple dimensions and how do you sort of brainstorm. So I wanted to make a like comprehensive video for the essay, but I felt a very important aspect of this would be to show you some practical examples. So in today's video we will be talking about the principles of what makes for a good essay, but at the same time I will also be showing you some very practical examples of टॉपर कॉपीज। मतलब वन ऑफ देम विल बी माई कॉपी, जहाँ पे हम देखेंगे कि भाई देखो व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रिंसिपल टर्म्स। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि भाई हाउ टू प्रिपेयर। दिस वीडियो विल हैव a lot of these skippable sections, chapters. You can skip as you require to go to the section that you will find most useful. And all of the resources that you will see in today's video will also be shared on our Telegram channel. The link for that will be in the video description. You can also search for UPSC Prep IAS on Telegram. Right, तो how to prepare की अगर हम बात करें तो how to prepare में सबसे basic चीज़ कि भाई आप जैसे जैसे जीएस सब्जेक्ट्स अपने कवर करते जाओगे तो देर विल बी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू विल गेन, एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर योर एसे प्रिपरेशन. बट एट द सेम टाइम इफ यू कैन रीड सम नॉन फिक्शन बुक्स ऑल्सो. अब a very interesting idea over here is कि you can match these non-fiction books to your GS subjects to make your life easier. Like for example, you can read this book which is 10 Judgments That Changed India by Zia Modi. Now this is a great book, non-fiction, but will also help you definitely in GS2, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट की केसेस एंड जजमेंट्स मैं बोलता रहता हूँ हर बार कि आपको रखने हैं. This book will give you those. And then there is another great book, The Wit and Wisdom of Nani Palkhiwala. इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की जो किताबें हैं, those you can read. They'll be great help for quoting in international relations. GS2 के पेपर में इकोनॉमी से रिलेटेड संजीव सान्याल की कुछ किताबें हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं. A lot of these things you can read even now, and this will be useful for you not just for your essay but also will help एडिंग वैल्यू इन योर जीएस का सब्जेक्ट. क्योंकि बहुत बार क्या होता है जीएस में हम सेम रटी रटाई चीज़ सेम इंस्टीट्यूट से सेम सब कोई पढ़ रहा है, हर कोई लिख रहा है. द एग्जामिनर इज एब्सोल्युटली बोर्ड. हाउ डू यू स्टैंड आउट? बाय एडिंग सम डिफरेंट डायमेंशंस. राइट, एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाता है एसेज के केस में, विच इज़ दैट यू शुड ऑल्सो रीड गुड एसेज. क्योंकि देखो 150 words लिखना is a different skill, but writing a long form essay 1000 to 1200 1500 words is a different skill. So for that you should read some examples of good essays, and there are some great essays written by Paul Graham on a lot of varied topics. तो क्या करना है आपको कि भाई आपको paulgraham.com पे जाओगे एंड जो भी टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब ही is one of the co-founders of Y Combinator, and what you can simply do is go here and he has a lot of essays. जो भी चीज़ पसंद आ रही है, जो भी आइडिया आपको लगता है इंटरेस्टिंग है, जस्ट स्टार्ट रीडिंग दैट essay, and what you need to do is उस essay का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करो कि भी मतलब Paul Graham's essays are considered as some of the best essays on those particular topics. Why? क्यों ये ऐसे अच्छा है, क्या क्यों यहाँ पे फ्लो है, अपने आप से सवाल पूछो एंड ट्राई एंड सी इफ़ देर आर फ्लॉज इन हिज लॉजिक. व्हेन यू आस्क दीज सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, जो कुछ हिडन डिटेल्स हैं वो आपको समझ आने लगेंगी. राइट, सो फ्रॉम हियर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया कि भाई बेसिक अपना हमेशा किसी भी ऐसे में आप देखोगे, बीट पॉल ग्राहम और बीट एनीबडी एल्स, इज दैट देयर विल बी अ सिंपल स्ट्रक्चर टू दिस ऐसे. देयर विल बी अ इंट्रो, देयर विल बी अ बॉडी एंड देयर विल बी अ कंक्लूजन. राइट, तो बॉडी को जनरली आप दो पार्ट्स में तोड़ोगे, एक थीसिस में, एक एंटी थीसिस में. बहुत बेसिक चीज़ है ये. थीसिस क्या है? दिस इज़ माय मेन आर्गुमेंट. एंटी थीसिस क्या है? दिस इज़ माय काउंटर आर्गुमेंट. क्योंकि किसी भी एस्से में
you are exploring ideas, you are exploring dimensions, you are exploring logically जो भी टॉपिक आपको दिया गया है. लेट्स से फॉर एग्जांपल इस एस्से की बात करते हैं कि भाई आर ग्रेटेस्ट एबिलिटी एज अ ह्यूमन इज़ नॉट टू चेंज द वर्ल्ड बट टू चेंज आवर सेल्व्स, चेंज अ वेरी ह्यूमन क्वालिटी, राइट. तो इस एस्से में अगर काउंटर डायमेंशन आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो फिर एक ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है कि इट इज़ आर ग्रेटेस्ट एबिलिटी, तो आई एम जस्ट इम्प्लिसिटली agreeing with that. I don't have to agree with that. I can ask question. Why is it the greatest ability of humans? Why is something else not the greatest ability? Why is communication not the greatest ability of human beings? Why is maybe thinking not the greatest ability? Why is change or the ability to improve, develop ourselves? Why is that the greatest ability? राइट. अब ये वाला चीज़ कहीं ना कहीं इस एस्से में एक्सप्लोर होनी चाहिए, रीजंस फॉर चेंज. और अगर नहीं होती है तो दैट इज़ वेयर आई नो कि भाई ये एस्से में कहीं ना कहीं कुछ गैप रह गए हैं. बेसिक सी चीज़ है बट शुड हैव बीन एक्सप्लोर्ड. सो दैट्स द आइडिया. ऊपर से ही देख के मुझे पता है कि भाई इस एस्से में कुछ ना कुछ गैप रह गए हैं. नाउ कमिंग बैक टू आवर थियोरेटिकल डिस्कशन कि भाई मेन आर्ग्यूमेंट देन काउंटर आर्ग्यूमेंट मुझे देने ही हैं क्योंकि एस्से में मेरे पास स्पेस है टू एक्सप्लोर बोथ ऑफ दीज आइडियाज़. नाउ जब मेन आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट को हम लड़वाते हैं व्हेन दे फाइट, तो नेचुरली देयर इज अ आउटकम ऑफ दैट फाइट. दैट आउटकम इज योर सिंथेसिस विच इज व्हाट यू राइट इन द कंक्लूजन. नाउ देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक दैट यू कैन फॉलो ओवर हियर विच इज कॉल्ड एन एको. एको में हम क्या करते हैं कि हम इंट्रो के लिए एक पेज छोड़ देते हैं. हम अपना पूरा एस्से लिख लेते हैं, वो एक पेज छोड़ के हमने कंक्लूजन भी लिख लिया है, एंड ऑफ द टॉपिक वी हैव रिटन, एंड देन बेस्ड ऑन दैट कंक्लूजन वी आस्क अ क्वेश्चन इन द इंट्रो. बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन वी आस्क अ क्वेश्चन इन द इंट्रो. तो इससे क्या होता है कि एक बहुत सिंपल सी चीज़ दैट द एग्जामिनर गेट्स अ फील ऑफ यूनिटी. You have written a unified thesis. My writing. A unified thesis. A unified thesis में सिंपल सा आइडिया क्या हुआ कि भाई आपने शुरू में एक सवाल पूछा एंड बाय द एंड ऑफ दैट एसे आपने उसी सवाल का जवाब दिया है वन वे और अनदर. सो दैट मेक्स योर एसे अ गुड रीड, और एटलीस्ट by the end of the essay your examiner will get that aha feeling that okay, that question asked, answer given, great. And this is a feeling that I want to exploit with the examiner कि भाई I want them to have that aha moment where they sort of wake up and say कि something nice. बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो आहा मोमेंट है, ये जो एको है, ये मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियाँ लिखना, अगर मैंने यहाँ पे काम नहीं किया, इफ़ माई थीसिस एंड एंटी थीसिस आर नॉट प्रॉपर, और इफ माई आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट देयर, इफ आई हैव नॉट गिवन अ लॉट ऑफ डायमेंशंस हियर, सो देन दिस एको फील्स चीप, राइट. तो आप देखोगे क्या हुआ है कि जो ऐसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था वेयर चेंज पे ये टॉपिक था, तो चेंज पे क्या है कि भाई यूवल नोआ हरारी के बारे में कुछ बताया है कि भाई प्राइमरी हॉलमार्क्स ऑफ ह्यूमन स्पीशीज इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज देयरसेल्व्स इन लार्ज ग्रुप्स. तो बुक कोट कर दी है एक, एंड उस पे से कहानियाँ चल रही हैं कि आर एबिलिटी टू अडैप्ट एंड वेर चेंजिंग वर्ल्ड, उसको थोड़ा और आगे लेके गए हैं. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई द इंट्रो इज़ जस्ट, आई थिंक यहाँ तक इंट्रो ही चल रहा है, 3 पेजेस का इंट्रो नहीं होना चाहिए. दिस इज़ अ बैड आइडिया, राइट. As a species, we have not only learned to change and channelize nature to suit our needs, to form dams storing water, use fuel for creating electricity, but we have also molded innumerable species of both plants as well as animals to our benefit. We have changed faces of mountains, created seas, land out of sea, dug tunnels to connect oceans, and sometimes even changed the world to our own detriment by creating ozone hole and climate change. Right? So, if an external observer were to look at and assess our strengths and weaknesses, our ability to change the world, अंग्रेजी बहुत बढ़िया लिखी है, बट इंट्रोडक्शन ही आपका 3 पेज का हो गया, 10-12 पेजेस आपके पास टोटल हैं. तो समवेयर और द अदर यू मिसिंग द पॉइंट ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन इन दिस पर्टिकुलर एसे. येट दिस वर्ल्ड कुड बी सर्फेस लेवल अंडरस्टैंडिंग ड्राइव्स चेंज इन द फर्स्ट प्लेस. तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे बात करिए. इट इज़ आवर एबिलिटी टू चेंज आवरसेल्व्स दैट इज़ इन फैक्ट द ग्रेटेस्ट एबिलिटी वी पोजेस एज ह्यूमन बीइंग्स, द पोटेंशियलिटी टू क्रिएट जेन्युइन नॉवेल्टी फ्रॉम कॉन्शियस वोल्यूशन.
एंड लास्ट में इन्होंने क्या किया है कि भाई यहाँ पे आके एक पोएम डाल दी है फ्रॉम रूमी. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I'm trying to change myself. A simpler thing would have been just to start with this poem and then maybe expand on that maybe. यहाँ पे ट्राई किया इन्होंने एको करने का, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई पहले 3 पेज में इतना सब कुछ लिख दिया है कि अब जो मेन बॉडी थी, जहाँ पे बात करनी थी, जो आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने थे, वहाँ मज़ा नहीं आया. राइट, सो कमिंग बैक टू स्ट्रक्चर, इंट्रो एंड कंक्लूजन में एको कर रहे हो, कोट्स, पोएम्स, एनेक्डोट्स, ये सारी चीज़ें आप करोगे, दैट्स ग्रेट, एको करो, बहुत बढ़िया. बट अगर यहाँ पे आपका कंटेंट मिसिंग है थीसिस एंड एंटी थीसिस में, जो कि हमने इस ऐसे में देखा कि काउंटर पर्सपेक्टिव पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, तो देन बाकी सारी चीज़ें लूज सिग्निफिकेंस. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु माइट हैव रियलाइज्ड, दैट वाज माय एसे दैट आई रोट इन वन ऑफ माय अर्लियर अटेम्प्ट्स, जहाँ पे शुरू में मैं भी वही गलतियाँ कर रहा था. Eventually I ended up getting 157 in one of my attempts in civil services exam, which was one of the highest scores in the essay in that year. But again, जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं भी वही बहुत basic mistakes कर रहा था. It's fine, everybody makes those mistakes, but the idea is that you want to learn from them. So let's move on to the next part, where we want to talk about flow. कि even in this essay जहाँ पे मतलब गलतियाँ हैं, but लॉजिकल नरेशन है. लॉजिकल नरेशन का क्या मतलब है कि भाई पिछले से अगले में कनेक्शन आ रहा है. लेट्स जस्ट हैव अ लुक. राइट, तो कनेक्शन कैसे आ रहा है? सिंपली देखें, द एबिलिटी टू अडैप्ट, नथिंग बट द एबिलिटी टू चेंज द वर्ल्ड टू सूट आवर नीड्स. एज अ स्पीशीज वी हैव नॉट ओनली लर्न टू चेंज एंड चैनलाइज नेचर, विच इज़ कनेक्टिंग, मतलब प्रीवियस जो बात चल रही थी उसी को आगे लेके चल रहे हैं. एंड वी हैव क्रिएटेड लॉट्स ऑफ चेंज, और लॉट्स ऑफ चेंज को फिर इफ़ एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर, यहाँ पे कीवर्ड आपका है सो का क्या यूज़ है यहाँ पे, दैट हमने बहुत सारी एक आर्ग्यूमेंट दी. आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या है, दैट वी हैव चेंज्ड थिंग्स एज अ स्पीशीज़, वी हैव मॉडिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी हैव चेंज द फेस ऑफ माउंटेन्स, ये किया वो किया है. सो इफ़ एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर वर टू लुक, कनेक्शन आ गया मेरा अगले पैराग्राफ में ऑटोमेटिकली. देन देर इज़ ऑल्सो 10 माने की मतलब अब सो बोला मैंने, तो देयर फोर वॉट इज हैपनिंग इज आई एम यूजिंग कनेक्टर वर्ड्स. कनेक्टर वर्ड से क्या हो रहा है कि यू आर बिल्डिंग अ लॉजिकल फ्लो, कि भाई मैंने पहले एक आर्ग्यूमेंट दिया, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया एंड तीसरा आर्ग्यूमेंट दिया, इन ऑर्डर टू बिल्ड फ्लो इन टू द एसे. राइट, इसी को हम आगे देखेंगे. तो हाउएवर दिस इज नॉट टू से, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट कुछ देने की कैच, नेचुरली वी शुड लुक एट दीज इंटरैक्शंस मोर क्लोजली. तो फिर एक फ्लो चार्ट कुछ बन गया. 10 बिकॉज हैविंग डिस्कस्ड द व्हाट ऑफ आवर एबिलिटी, वी विल नाउ मूव ऑन टू हाउ एंड द व्हाई. तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग ऑल्सो इज कि आई हैव यूज्ड दिस कनेक्टर सेंटेंस, कि भाई ये सब हमने कर लिया है, तो नाउ लेट अस डिस्कस द हाउ एंड द व्हाई. सो देन द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि ओके, हाउ डू वी चेंज आवरसेल्व्स. तो दिस इज अ कनेक्शन टू द प्रीवियस वन. एंड मतलब फ्लो इस तरीके से आपको बनाना है. फ्लो फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन यू आर एक्सपैंडिंग ऑन सम टॉपिक, सिमिलरली येट 10, तो ये क्या है, विच ब्रिंग्स अस टू, कि भाई ये सारी आर्ग्यूमेंट सुन के हम कहाँ आ गए हैं, कि भाई व्हाट आर द रीजंस फॉर चेंज. तो हो क्या रहा है इस एसे में, वी हैव अ लॉजिकल नरेशन. लॉजिकल नरेशन में क्या है, दैट आई गिव अ आर्ग्यूमेंट, देन आई गिव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट मे बी, एंड वो आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट को अपने आप बिल्ड किया जा रहा है. दैट दिस हैपेंड, सो समबडी वुड थिंक दिस, देयरफॉर दैट वुड हैपन. सो व्हाट हैपन्स इज कि भाई तरीके से हम एक के बाद एक चीज़ें करते जा रहे हैं. नाउ इवन इन दिस वीडियो इफ़ यू लुक एट, फर्स्ट चीज़ हमने क्या बात करी कि भाई प्रिपेयर कैसे करना है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू बिल्ड फ्लो. नाउ अनदर वेरी सिंपल वे इन विच यू कैन बिल्ड फ्लो इन एन एसे इज थ्रू अ Q&A फॉर्मेट. Q&A फॉर्मेट क्या, कि भाई आप टॉपिक लीजिए, टॉपिक को तोड़ो पार्ट्स में, कि वापस आते हैं इसी ऐसे टॉपिक पे, एंड लेट्स ट्राई एंड ब्रेक डाउन दिस टॉपिक इनटू डिफरेंट पार्ट्स. फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पहले ही पूछ दिया था, विच वॉज कि भाई द essay says this is our greatest ability. Why is some other ability not our greatest ability? So should I not give examples for कि change is actually the greatest ability? And then उसके बाद is not to change the world but to change ourselves. Why? मतलब if I change the world, am I not having a bigger impact?
So then why is changing myself such a big deal than, you know, changing the world? नॉट जस्ट दैट, आप उसके अलावा भी पूछो कि भाई चेंज करना ही मतलब ऐसा क्यों इतना बतंगड़ इस चीज़ का बनाया गया है. वाई कैन अ सिंपल आइडिया लाइक नॉट चेंजिंग और यू नो बीइंग हु यू आर इन द मोमेंट एंड बीइंग योर सेल्फ कंप्लीटली, वाई इज दैट सच अ बैड थिंग? क्योंकि इन द एंड बुद्ध ने कहीं ना कहीं बोला है ना कि भाई यू नो डिज़ायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ईवल. एंड मतलब इफ आई डोंट डिज़ायर थिंग्स देन आई स्टे काम, I stay focused. I'm not saying that this is the right answer to this problem or this question statement, but this is a question that we can ask and then we can answer, and that builds flow. अब ये जो questions हैं सारे कि भाई हमने greatest है, is it our capability also, मतलब is it my ability to change? Sometimes we don't feel like we can change. So what ability is this? And as a human, do others not have this ability? Can animals not change? Is like, you know, हर शब्द पे आप सवाल उठा सकते हो, एंड जब हर शब्द पे आप सवाल उठा सकते हो तो देयर यू बिल्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. लेट्स से यू बिल्ड 10 to 15 क्वेश्चंस, एंड इन क्वेश्चंस को फिर आप लॉजिकल सीक्वेंस में रख लो कि भाई एक लॉजिकल सीक्वेंस की भी शुरुआत कहाँ से करें? इज इट आर ग्रेटेस्ट एबिलिटी? इज इट इवन एबिलिटी? इज इट ओनली ह्यूमंस? मैं अभी के लिए सिर्फ मैंने जो क्वेश्चन में वर्ड्स हैं उनके हिसाब से रखा, बट मे बी उस टाइम लिखते हुए मुझे लगे कि भाई देर इज़ अ बेटर सीक्वेंस टू दीज क्वेश्चंस. सो व्हेन आई हैव रिटन दीज क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर मैनर विच आई फील इज द मोस्ट लॉजिकल वे, एंड देन आई कीप आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क्ड, सो दैट बिल्ड्स अ वेरी नेचुरल फ्लो इन माई एसे. राइट. उसके अलावा लॉजिकल नरेशन के अलावा जो हमने बात करी थी, तो देन कनेक्टर्स विच इज़ सो, दस, ऑल्सो, सिमिलरली, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो यूज numerical words, first, second, third, fourth, fifth, sixthly, seventhly, eighthly. Again, what is this doing? This is just showing a continuity in your essay. And then transition की चीज़ हमने जैसे देखी थी, where there was a linking sentence, there was a question, there was even a declaration that we have talked about these particular things, now we will talk about something else. Right, so all of these things can be used in your essay in order to build a great flow. Which brings us to the next thing that we want to talk about, which is quotes and anecdotes. Now quotes and anecdotes में एक तो बहुत सिंपल सा है कि एक आंसर क्राफ्ट की हमारी वर्कबुक है. तो ये जो वर्कबुक है ये एसे की वर्कबुक है, एंड जनरली वी हैव दिस वर्कबुक फॉर ईच ऑफ द GS सब्जेक्ट्स फॉर मेंस, GS 1, 2, 3, 4 एंड एसे. तो यहाँ पे वी हैव शेयर्ड, कहाँ है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फ्लो, वोकैबुलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए. राइट. तो वैल्यू एडिशन पे हम सीधा कूदते हैं, विच इज़ मोर लाइक द एंड ऑफ द बुक. तो यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको कुछ कलेक्शन ऑफ एसेज एंड कुछ बुक्स के समरीज, गांधी जी के सिंस, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एसे, एजुकेशन से रिलेटेड कोट्स, all of these things have been given so that you can quote them as and when you like. So this PDF will also be available in the Telegram channel, and the idea is मतलब PDF कलेक्ट करते मत रहो, बिकॉज बहुत बार ये होता है दैट वी वांट टू स्टार्ट कलेक्टिंग दिस PDF दैट PDF की भी यहाँ से भी एक मिल गई, वहाँ से भी मिल गई, 10 PDF मैंने कलेक्ट कर ली, एंड आई हैव बिकम अ PDF कलेक्टर रादर देन बिकमिंग द कलेक्टर दैट मैटर्स. डोंट बी अ PDF कलेक्टर. आई वुड रादर सजेस्ट कि ये भी अगर PDF आप लेते हो तो इसमें से यूज़ द कोट्स और टेक आउट द कोट्स दैट यू रियली लाइक एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन कलेक्शन. क्योंकि जब आप अपनी कलेक्शन बनाओगे ना तो एटलीस्ट हर कोट एक दो बार पढ़ोगे उसमें से, और जब तक वो कोट पढ़े नहीं गए हैं, वो PDF आपने रख लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. अगेन, वेन एवर यू रीड अ गुड बुक, आई गेव यू अ कपल ऑफ देम, 10 जजमेंट्स, नानी पालखीवाला, S जयशंकर की किताबें, एंड न्यूज़पेपर इवन, जब भी आपको लगता है कि भाई देर आर सम गुड लाइन्स गिवन देयर, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत बार कोट ऑफ द डे भी लिखा होता है, या कोई आपको एडिटोरियल में भी चीज़ें मिल सकती हैं. मेक अ कलेक्शन ऑफ दीज for your own self. Obviously you have to organize them. If you do not organize them, nothing is going to work for you, because haphazard list of quotes are just not that useful. You have to organize them. जैसे education, environment, Gandhian quotes, वो सब हमने वहाँ पे किया हुआ था. अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करके देखो, क्योंकि जैसे ही ऑर्गेनाइज करोगे तो दे बिकम इंस्टेंटली यूजेबल, क्योंकि जैसे ही वो की टर्म आपको इस्तेमाल होगा, यू विल हिट. ऑल्सो यू कैन स्टील देम.
माने कि आपने कोई टॉपर कॉपी देखी, किसी का एसे पढ़ा या किसी और ऑथर का एसे पढ़ा, जैसे पॉल ग्राहम की हमने बात करी थी. इफ दे हैव सम कोट्स, you can steal them and put them in your quote library. So these things start doing, because if you don't तो फिर वो मतलब PDF कलेक्टर बनते रह जाओगे एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं है. Now let's come to the brainstorming part of this video. So when brainstorming abstract or philosophical essays, abstraction का ये जो concept है, that is something that's very very useful for you. तो पहले समझते हैं कि भाई मतलब what does abstract even mean. Abstract is simply a situation broken down so much that its constituent parts become clear, and इन constituent parts को हम concepts की तरह लेके इनके साथ खेल सकते हैं, right? A very simple example that I can give over here is कि let's say कि भी आपने न्यूज़ आइटम कोई पढ़ा है that एक घर में चोरी हो गई एंड पिताजी एंड बेटे के बीच में बहस हो गई, एंड पिताजी एंड बेटे की बहस जो थी वो पुलिस के सामने ऐसी हो गई कि हाथापाई हो गई. सिचुएशन, लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स क्या है कि भाई देयर इज़ अ फैमिली हैज़ हैड अ टफ सिचुएशन. देयर इज़ अ फैमिली, देयर इज़ अ टफ सिचुएशन, and in that tough situation they have not been able to handle themselves well, right? Can I say that brief अगर मैं concepts में तोड़ूं तो that situation can be broken down into like such kinds of parts, that there's a family, there's a tough situation, and like people can't handle themselves in that situation. तो बेसिक आइडिया यही है. लेट्स टेक एन essay and see कि भाई एब्स्ट्रैक्शन को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जैसे पिछली बार हमने ऐसे में देखा था कि चेंज इज़ द ग्रेटेस्ट एबिलिटी, तो हमने हर चीज़ पे सवाल उठाए थे, तो दैट वाज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. नाउ लेट्स टेक अप अनदर ऐसे, नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट. सो दिस इज ऑल्सो अ PYQ फ्रॉम 2023 एंड इस टाइप के एसेज एंड कोट्स आते रहते चलते रहते हैं. नाउ द आइडिया इज़ कि not all those who wander are lost. Abstraction क्या है? All. What is all over here? Abstraction में भी एक common idea theme आपका वही रहेगा, that we keep asking a lot of questions, that what does all mean here? Can there be other meanings to all? Who wander? What is the meaning of wander? कि भाई क्या wander का मतलब है that I am roaming around? Does wander mean that I am just traveling? Does wander mean is this wander physical? Is it spiritual? Is it mental? Like for example, some of you who might be watching this video by now कुछ मतलब distract हो चुके हो, कहीं और जाके आपका दिमाग चल रहा है while the video is playing in the background, तो you are also mentally wandering, right? Now if you are back here, the idea is कि abstraction में हमने क्या किया, हमने एक एक शब्द के मीनिंग को तोड़ा. Now lost भी अगर मैं बोलूँ तो lost को भी मैं इन तीनों डायरेक्शंस में देख सकता हूँ. Are you mentally lost? Are you physically lost? Are you spiritually lost? Or just some other kind of lost. Maybe मतलब मैं 2-3-4 चीज़ें सोच पा रहा हूँ, आप कुछ और भी सोच सकते हो. If you can think about any other kind of lost, please do. You can be financially lost. Even if you can think about some other idea, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. बिकॉज अगेन ऐसे के साथ जितना आप बातचीत करोगे, जितना आप इंटरेक्ट करोगे, जितना आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे, द मोर यू विल बी रिवॉर्डेड इन द एक्चुअल पेपर. एंड दिस थिंकिंग प्रोसेस, इफ यू डेवलप दिस एब्स्ट्रैक्शन दैट ब्रेक डाउन ईच वर्ड, नॉट ऑल, मतलब वाई नॉट, मतलब वाई नॉट ऑल ऑफ दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट? हु आर द वंस हु आर वॉन्डरिंग एंड आर लॉस्ट? मतलब कौन से हैं जो नहीं हैं, कौन से हैं जो हैं? सो which ones का अगर मत क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भाई if there are only some people who are wandering but are not lost, so can it be that they can go from one category to the other? Can they go from the first category where they are wandering and they are lost to wandering but not lost? And can it be the other way around? Can you be wandering but not lost and be wandering and lost? तो क्या किया हमने बस
बातचीत करते हुए हर वर्ड पे एक सवाल उठाया कि भाई व्हाट डज दिस वर्ड मीन. दैट इज़ द आइडिया ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया कि नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट. हु आर दीज ऑल? How are you wandering? How are you lost? If not, then which ones? How do you decide? Can they change? And यही बातचीत करते हुए क्या हुआ कि मतलब we've explored like 5, 6, 7, 8, 10 dimensions of this essay, which now if you logically arrange, you will have a structure to your essay. Right, so coming back to this idea of abstraction, एक ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो. How to get ideas. Because getting ideas can be sometimes hard when you do not relate to the point at hand. बहुत बार ऐसा होता है कि भाई इतना abstract topic आ गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लिखूँ. तो abstraction is one of the ways in which you can break it down. Another idea how you can break it down is inversion. Inversion is very simply a negative. तो हमने abstraction में काफ़ी चीज़ों को तोड़ लिया already, but if I have to say that not all those who wander are lost, इसका एब्सोल्यूट ऑपोजिट क्या होगा? सो इसका एब्सोल्यूट ऑपोजिट क्या होगा? आई कैन सिंपली से all those who wander are lost. Can that be the case? Can it be like all of the people who are wandering are actually lost and they don't really feel like that because मीनिंग वो क्रिएट कर लेते हैं अपने आप से जहाँ की कोई मीनिंग नहीं है कि देर इज़ द जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट द डेस्टिनेशन, बट समटाइम्स द डेस्टिनेशन इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट. तो नेगेटिव जब मैं बात करता हूँ, नॉट ऑल हटा के की बजाय मैंने सिर्फ बोल दिया ऑल. या फिर मैं और क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, सिंपली नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर लॉस्ट की बजाय मैं कुछ और वर्ड यहां पे लिख सकता हूं. तो इन्वर्जन एंड एब्स्ट्रैक्शन आर सिमिलरली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. हम क्या कर रहे हैं कि हम जो स्टेटमेंट दी हुई है हम उसी को तोड़ मरोड़ के कुछ और तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट बिकम्स एब्सोल्युटली क्लियर टू मी. And at the same time, I also get multiple dimensions to explore in any given essay, right? So inversion is something that you can use जहाँ पे आप मतलब बस सेंटेंस को बिल्कुल उल्टा क्या है इसका, क्योंकि काउंटर पर्सपेक्टिव तो मुझे लिखना ही है ना. तो काउंटर पर्सपेक्टिव के टर्म्स में मैं सोचने की कोशिश करूँ तो समटाइम्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इटसेल्फ बिकम्स अ लॉट क्लियरर. एट द सेम टाइम इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड anything कि भी क्या है, क्यों है, कैसे है, a lot of the times these abstract experiences become more clear when you think about them through the lens of your personal experiences. Lens कि भाई not all those who wander are lost. Like for example, you are a UPSC aspirant who has been preparing. Now कायदे से आपके पास कोई ठिकाना नहीं है, आपके पास कोई destination नहीं है, you are wandering technically, right? But you could say that I am not lost. I am going somewhere. I know my destination even if I've not reached there. So through personal experiences, sometimes you can also make sense of these, abstract sentences. Like for example, एक और था कि ships in harbor are safe, but that is not what ships are for. Which you can talk about कि भाई UPSC देने के लिए रिस्क लिया ना मैंने. अगर मैं रिस्क ही नहीं लेता तो I would never have gotten that reward. And life is sometimes like that. You have to take a risk in order to get an outsized reward. Personal experiences can be a great lens for you to clarify statements and get an understanding of what exactly does this mean. क्योंकि देखो, all of you that are giving this exam at this point are 22 to 30 years old and you have lived life. You have faced heartbreak, you have loved someone, you have family, you've fought with friends, you've fought with family, you have tried things, you have failed, you have faced some successes, you've faced some failures. बहुत सारे personal experiences आपके रहे हैं. Why don't you try and think through those experiences in terms of the topic of the essay? Because once you do that, things start becoming a lot more clearer. मुझे abstract बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ चीज़ें कोट नहीं करनी है. Sometimes having these personal experiences
that I can share in a I won't say very very detailed manner, क्योंकि फिर वो हो जाता है कि भाई you're trying to identify yourself to the examiner. No, but अगर मैं third person में कि भाई sometimes this sort of a failure also faces people in life where they don't know what to do, so they can be lost. But in the course of being lost, they can sometimes hit upon other realizations which can open doors for them. Right? So through personal experiences, you can also try to clarify the statement of the essay. And if you do this, the essay becomes a lot more personal. And जब भी हम personal experience के बारे में लिख रहे होते हैं कि भाई you tried to woo a girl or a boy and that did not happen. So that experience also is a very very emotional one for us. And when we write with that emotional depth, our words flow. क्योंकि बहुत बार देखा होगा ना कि भी when you're trying to flirt with somebody or you're trying to win over somebody, शब्द बह जाते हैं बस. तो बहुत बार क्या होता है कि if you're writing from that emotional place in the essay, obviously practice this before you start doing this right in the UPSC exam, but if you do that, there is that possibility that you will write great English, great prose, because you are writing from a place of emotion. And that's another idea you can use to explore a lot of essays. And finally, there is the fail-safe, which is keep reading good essays. Like for example, there is an essay by Paul Graham which is called The Best Essay, where in the first line itself he says that despite its title, this isn't meant to be the best essay. The goal here is to figure out what the best essay would be like. Right? So he's doing the hard work for you. He's trying to figure out what a good essay will look like, or what the best essay will look like, and you can probably learn something from that. Right? So these sorts of things. And like there's a very good how do you say, graphic story that I would want you all to read. It's called Mused, A Day in the Park, and this link I'll also leave in the video description. So go through this story and try and figure out, let me know what you found, what you learned, or was it something that you found interesting at all when you come back to this video, if you ever come back to this video. But that's the idea कि I think इस वीडियो के बाद अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि भाई essay कैसे लिखना है, तो I've done my level best to explain the basic ideas, how to explore topics, मतलब what are the absolute basics and what are the advanced level techniques. कोशिश अब इसके बाद बस यही रहेगी that you write an essay. And if you want that essay to be evaluated from us, you can check out the Write Unlimited course or the Mains Focus Group. Any of those mains related courses जो हमारे हैं, अगर आप mains दे रहे हैं तो there we give you that facility कि आप कोई भी essay लिख के लाओ, PYQ है या आपने अपनी तरफ से कोई topic चुना है, whatever it may be, we will check that, evaluate that. And generally essay discussion when that happens with me or with Shashank sir, so it's a very very detailed session where we're going through each and every idea कि भाई यहाँ और क्या किया जा सकता था, कैसे किया जा सकता था. So that will be all for today's video. Thank you all for watching and all the best on your UPSC journey.